এসেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভালোবাসা জানাচ্ছি। আমরা 27 তারিখ on 27th we leave from Tripura and we reach Delhi on 30 2021 দিল্লি অভিযান যাব। আমরা 30 তারিখ এবং 1 তারিখ আমরা দিল্লিতে ধর্নায় বসব এবং যেভাবে আমাদেরকে এনএফ রেলওয়ে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে যেভাবে কথা হয়েছে সেইভাবেই আমরা দিল্লির জন্য রেডি আছি। এবং আমাদের সঙ্গে যারা যাবেন, আমাদের ত্রিপুরা মথার ওয়ারিয়র্স, YTF, TWF অ্যান্ড ত্রিপুরা মথার লিডার্সরা যারা যাবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে 27 তারিখ আমাদের বিকেলে যে ট্রেনের টাইম, ওই টাইমেই আমরা আগরতলা থেকে রওনা দেবে এবং সকলকে এটাই অনুরোধ জানাবো টাইমলি তারা যাতে ট্রেন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেন। English and also in Hindi so that they also understand that हम क्या पूछ रहे हैं उनसे। I will answer that separately. But right now, if you want to ask me anything regarding Delhi Abhiyan and IP, my president is sitting with me. Ananda Babu is sitting with me. Rishiketu is there. My wife. I think that they have every right to move to the High Court and Supreme Court. The fact is that I moved on to the Election Commission myself when I was a Congress president. There was absolute 100% rigging in Tripura during the Lok Sabha elections, and that's why 167 booths were also told to recast their vote. Nothing has changed from 2019 till now. There is violence, there is intimidation. It happened during ADC election. I was attacked myself in the SDM's office. So the fact is that violence has become an integral part of elections in Tripura. You all are reporting it today because it's in Agartala, but I saw violence during the ADC election, and it's still happening now, and it's a very sad state of affairs. People should be allowed to exercise their franchise no matter who they want to wish to vote for or who they don't want to vote for, but that is not happening in the state. Even here, some of our Tripura Motha is fighting in only a few seats. For the first time, a regional party is fighting in a few seats. Even there, we have been intimidated. There is video evidence. There is clear evidence of intimidation, but still it goes on. एडीसी इलेक्शन के पहले भी आपका मोह साइन हो चुका था, इसके बाद भी सेपरेटली आप कॉन्टेस्ट किया। अगर टाइम दिया प्राइम मिनिस्टर ने तो हम प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, होम मिनिस्टर ने दिया तो मिलेंगे, अगर नहीं दिया तो वहाँ में जाकर रिप्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन हम लोग ऑफिशियली एक मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू सबमिट द मेमोरेंडम टू डिमांड फॉर Tripura land and Greater Tripura land. Enough is enough. We do not want to do tamasha. We want to officially tell the government of India, you may be IPFT, you may be Tripura Motha, but we are speaking in one voice in Delhi. We are not speaking as different parties. No more divide and rule should persist in the politics of Triprasas in our state. Also to add, 27th, हम लोग we will all be leaving from Agartala for Delhi Abhiyan. Almost 1,500 people, close to 1,500 people will be going to Delhi. We will be protesting in Jantar Mantar. Our demand being very specific for Tripura land, Greater Tripura land. Our demand being for the early passing of 125th Amendment in the Parliament. Demand for Kokborok in Roman script. Our demand for repealing of CAA. And most importantly, our demand for Thansa. मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि IPFT is also going to accompany us. We have always said that when we go to Delhi, we should not be speaking in different parties. We should be speaking as one Jati. So IPFT and Tripura Motha
will be speaking in the same voice, we'll be giving a common memorandum, and we are working in a process where in the short coming months we will jointly be asking the government of India to give the indigenous people of Tripura a homeland, a state of their own. आने वाले इलेक्शन में अगर किसी ने राइटिंग में ग्रेटर त्रिपुरालैंड या त्रिपुरालैंड का डिमांड को नहीं दिया, देन हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेला आने वाले इलेक्शन। अल्टीमेट सोल्यूशन आप जितना भी एम्पावर कर दे, अल्टीमेट सोल्यूशन 2026 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद कोई हमें पूछने वाला नहीं है। Nobody is going to ask about the Tiprasa people after delimitation in 2026। तो जो भी सोल्यूशन चाहिए 2023 तक चाहिए, और ये जो सरकार को अगर कुछ करना है तो 2024 तक करना पड़ेगा। हम और अब अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ से कुछ फंड्स मिल गया, यहाँ से कुछ मिल गया। वी वांट फुल एंड फाइनल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनस पीपल। देन आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। अगर आपको कोई सवाल है रिगार्डिंग दिल्ली अभियान तो मैं अभी आंसर करता हूँ। अगर अर्बन बॉडी के इलेक्शन के बारे में आपको पूछना है तो थोड़ी देर बाद पूछिए, लेकिन हिंदी so that our leaders can understand it in a language they are comfortable in, a language which is comfortable in across Northeast and in Kokborok because that is our mother tongue. So अगर IPFT, मैंने IPFT को क्लियरली एक बात कहा है, मेवात कुमार जमातिया से भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं। मैंने कहा है कि हम दोनों को एक पार्टी हो जाना चाहिए, और अगर हमें त्रिपुरालैंड के लिए फाइट करना है या ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए फाइट करना है तो हमें रेडी होना चाहिए अपना मंत्री पद और गवर्नमेंट से हटने के लिए, और एक आवाज़ में ग्रेटर त्रिपुरालैंड या त्रिपुरालैंड के लिए फाइट करने के लिए। वी हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस अ पोस्ट, वी हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस अ मिनिस्टरशिप। कि जो दूसरे त्रिपुरासाज हैं, जो बेंगलोर में है, जो दिल्ली में है, शिमला में है, चंडीगढ़ में है, यूपी में है, बंगाल में है, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, दिल्ली में है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू जंतर मंतर, और हमारे साथ हमें सॉलिडारिटी दिखाकर आप लोग प्लीज़ इसमें हिस्सा लीजिए। सवाल पूछिए। जहाँ तक उन्होंने मुझे कहा है कि त्रिपुरालैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अगर उनको हटना पड़ेगा तो वो हटने के लिए तैयार है, ये उन्होंने मुझे कहा है। देखिए, एक कहावत है ना, जंगल में नाचा मोर तो किसने देखा। ठीक है, खुमुलुंग में प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा, अम्बासा में प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा। इसके लिए हम हिंदुस्तान के राजधानी में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के टाइम में, क्योंकि पूरा इंडिया को देखना चाहिए कि एक छोटा स्टेट त्रिपुरा है, वहाँ में इंडिजिनस लोग रहते हैं और उनको 70 साल से नीचे रखा गया है। आज हमारा जो डिमांड है वो एंटी नेशनल नहीं है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड एंड वी वांट अ सॉल्यूशन टू आवर डिमांड्स, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टाइम्ड इंटायर विजिट ड्यूरिंग पार्लियामेंट। पहले हम लोग का डेट 14 तारीख नवंबर था, देन वी हर्ड दैट द पार्लियामेंट इज हैपनिंग ऑन द 29th, तो हमने अपना प्रोटेस्ट भी टाइमिंग करके ही पार्लियामेंट के साथ रखा है, क्योंकि वी वांट द पार्लियामेंट टू आल्सो नो दैट हम एक छोटा स्टेट हो सकते हैं, लेकिन हमारा डिमांड 100% जेन्युइन है। एक और बात मैं वेलकम लुकिंग एट हिज हेल्थ, बट हम लोग ज़रूर इसमें शामिल होंगे, और मेमोरेंडम में हमने क्लियरली एक आवाज़ में डिमांड किया है कि हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड स्टेट चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं खुशी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि दिल्ली में बहुत साल के बाद हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म में एक आवाज़ में डिमांड कर रहे हैं त्रिपुरालैंड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड को एक साथ। जो एडीसी इलेक्शन के पहले वायलेंस हुआ, जो हमारी डिसयूनिटी है, जो ढांचा नहीं है हमारे बीच में, इसी के लिए 70 साल से डिवाइड एंड रूल करके हमें पीछे रखा गया है। आज दिल्ली में एक मौका आया है कि हम लोग सब एक आवाज़ में दिल्ली जाकर बात करें। इसमें ईगो नहीं होना चाहिए, इसमें कौन बड़ा पार्टी है कौन छोटा पार्टी नहीं होना चाहिए, कौन रजिस्टर्ड और कौन अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। हमें वहाँ में त्रिपुरासा बन के एक आवाज़ में बात करना चाहिए, और वो हम करेंगे इस बार 30th और 1st को 283 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 27 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं, पूरा शेड्यूल आपको हम दे देंगे। जंतर मंतर में हमारा प्रोटेस्ट 30th और 1st को है। आई एम ऑल्सो अपीलिंग टू ऑल द लोकल मीडिया, रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया, प्लीज़ हमें भी कवर कीजिए। हम लोग भी त्रिपुरा का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एंड इंश्योर दैट वी आर
we are looked after, and our news is passed on to not only the people of Tripura but across the country. If you have any question related to Delhi Abhiyan, I'll be more than happy to answer. Uske baad, if you want to ask me any question which is separate from this, Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.